Now, today we'll be looking at an accounting standard which is less of an accounting standard. I would say it is more of a presentation standard. ठीक है. And presentation standard, see, presentation means how are things shown on the face of balance sheet and P&L. ठीक है. ये जो particular accounting standard है, this talks about certain numbers that have to be shown to the world. But the reason I don't want to call it an accounting standard is because यहाँ पे ना ऐसे टेक्निकली देखा जाए तो कोई अकाउंटिंग नहीं हो रहा है. अकाउंटिंग मतलब अपने दिमाग में क्या आता है कि यार कोई एंट्री वगैरह अपने को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, राइट. यहाँ पे देर इज नो अकाउंटिंग एंट्री एज सच दैट वी आर रिकॉर्डिंग. But there are certain numbers that users of financial statements have every right to know because they have invested money in the company. दिस स्टैंडर्ड IAS 33 इज अर्निंग्स पर शेयर. ठीक है. अर्निंग्स पर शेयर वाला जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, दिस स्टैंडर्ड बेसिकली टेल्स द शेयर होल्डर्स हु आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी कि and for every rupee that they सो मैंने जितने शेयर्स कंपनी में आई हैव इन्वेस्टेड, से मैंने रिलायंस के 10 शेयर खरीदे, आपने 50 खरीदे, किसी और ने कुछ और खरीदे. ठीक है. अब द नंबर अर्निंग्स पर शेयर टेल्स मी कि मैंने पर शेयर कितना कमाया. नाउ फॉर अस टू नो कि मैंने पर शेयर कितना कमाया, वन नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट नंबर इज प्रॉफिट attributable to equity shareholders. अब think about a typical profit and loss account of a company. Now, that typical profit and loss account, आप सेल्स माइनस कॉस्ट माइनस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस करके आपको मिलता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. व्हाट इज इंटरेस्ट? अगर आपने किसी से लोन लिया होगा तो यू हैव टू कंपल्सरीली मेक इंटरेस्ट पेमेंट टू दैट पार्टी, राइट. तो उसमें से आप इंटरेस्ट माइनस करते हो. इंटरेस्ट इज अ कंपल्सरी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. आपने प्रॉफिट कमाया चाहे नहीं कमाया, कैश आपके पास है चाहे नहीं है, आपको इंटरेस्ट तो माइनस करना ही है. ठीक है. सो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से आप इंटरेस्ट माइनस करेंगे, आपके पास बचेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स. ठीक है. अब समझो वॉट एवर कंट्री यू आर स्टेइंग इन, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट से आपका टैक्स रेट है 30%. तो इफ 100 इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से आप 30 रुपीज का टैक्स का प्रोविजन क्रिएट करेंगे, टैक्स माइनस करेंगे, आपके पास बचेगा 70. दिस 70 इज योर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. बट डू यू नो दैट, see, company में there are two types of shareholders that you will usually run into. One is an equity shareholder and the other one is a preference shareholder. Do you know the difference between the two? Yes, sir. Please tell me. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जनरली कंपनी के कुछ ऐसे शेयर होल्डर्स होते हैं जिनको सबसे पहले प्रेफरेंस मिलती है. फॉर एग्जांपल देयर एम्प्लॉयज़, कि अगर कभी कंपनी शेयर रेस कर रही है अपने, तो दे विल प्रेफर कि वो उनको सबसे पहले अलॉट किए जाएं. No, 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 no. That's not what preference share is. Preference shares का concept is something, that I'm sure was covered in 11th standard also. Preference, the word preference means they get preferential treatment. Now, preference shareholders are also owners of the company like equity shareholders, but preference shareholders get two forms of preferential treatment. One, when the time comes for payment of dividend, preference shareholders get dividend first before equity shareholders get any kind of dividend. तो पहला जो dividend पे करना है, that is paid to, if the company has to pay dividend, they pay preference shareholders first. They get preferential treatment as to payment of dividend. And कल चल के if the company is wound up for some reason, if the company shuts down for some reason, and you know when the company shuts down, what it will do, it will sell all the assets first. And when it sells all the assets, usko paisa milega, and then it will use that money to pay the different people to whom it owes money. For example, it owes money to the government in the form of taxes, it owes money to the bank, it owes money to the employees. तो सबसे पहले all outsiders will be paid. उसके बाद whatever money is left, उसमें से पहला प्रेफरेंस किसको मिलेगा in terms of repayment of capital? Preference shareholders. So preference shareholders get preferential treatment with respect to
Payment of dividend, sorry, payment of dividend, no doubt, but with respect to repayment of capital also, when the company shuts down, preference shareholders को पैसा देने के बाद, if any money is left, then that money is paid to equity shareholders. ठीक है? So preference shareholders get preferential treatment at the time of payment of dividend, and if the company goes into winding up, they get preferential treatment for repayment of the capital amount also. उसके बाद अगर पैसा बचा तो that money goes to equity shareholders. सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से मैं प्रेफरेंस डिविडेंड सब्ट्रैक्ट करूंगा, एंड आफ्टर दैट द अमाउंट दैट इज लेफ्ट विथ मी इज प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स. नाउ which is 1 lakh. ठीक है, let's say profit available for equity shareholders is 1 lakh. How many shares do you have? Number of shares outstanding मतलब total number of issued shares कितना है कंपनी का. Say that number is 10,000. Earnings per share will be profit available for equity shareholders divided by number of equity shares. ठीक है. आपको अगर ईपीएस निकालना है, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर बेसिक ईपीएस. इसको लिखना मत अभी, बिकॉज आई एम गोइंग टू मेक सम मॉडिफिकेशंस टू दिस फॉर्मूला. ठीक ओके, है. अब इसको देखिए. प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स इज 1 लाख. ठीक है. एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर देयर वर 10,000 शेयर्स इन इशू. मेरा financial year runs from Jan to December. On 1st of July, the company issued 5,000 shares, and you have to calculate EPS. अभी what some people might end up doing is opening shares 10,000, फ्रेश शेयर्स इशू किए 5,000, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 15,000. उनका ईपीएस निकलेगा 1 लाख डिवाइडेड बाय 15,000, जो भी वैल्यू आएगा. बट अंडरस्टैंड वन थिंग, ये जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर इज प्रॉफिट फॉर द एंटायर ईयर, बट डिनोमिनेटर में जो नंबर आप डाल रहे हो उसमें देर इज 10,000. ओके. दैट What is that 10,000? 10,000 is the number of shares which were outstanding for the entire year. And आपने 5,000 और ऐड कर दिया. But 5,000 was not there for the entire year, right? 5,000 was there only for 6 months. Do you agree? यस, See, जो कंपनी का शेयर कैपिटल है, कंपनी यूजेस दैट मनी टू अर्न रेवेन्यू, टू अर्न प्रॉफिट, सो ऑन एंड सो फोर्थ. है ना? कंपनी वही पैसा यूज करती है. 10,000 शेयर्स का जो पैसा था दैट वाज अवेलेबल फॉर द एंटायर ईयर, बट 5,000 शेयर्स का जो पैसा था दैट वाज अवेलेबल फॉर ओनली 6 मंथ्स आउट ऑफ 12. राइट। Correct? So, if I want to make my denominator, I cannot do 10,000 plus 5,000. 10,000 was outstanding for 12 months, so 10,000 into 12 by 12. But 5,000 was outstanding only for 6 months, so 5,000 into 6 by 12. तभी जाके वो denominator आपका correct comparable amount आएगा. Do you agree? यस, राइट। So आपका weighted average number of shares कितना है? Weighted average number of shares is not 15,000, it is 10,000 plus 5,000 into 6 by 12, which is 12,500. ओके, ठीक है. तो आपका ईपीएस का एक्चुअल फॉर्मूला क्या होना चाहिए? नॉट, ये तो चलो हम एज एकदम ही बेसिक सा अप्रोच है. द करेक्ट फॉर्मूला फॉर ईपीएस इज प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. ये ओके। फॉर्मूला आप लिख लीजिए. एंड ऑफ कोर्स व्हाइल यू राइट डाउन excuse me, have a look at the uh, this thing also. अपना have a look at the example also. हाँ, डन सर। ठीक है. Now let's look at a simple question to understand how is EPS calculated. Gerard's earnings for the year ended 31st December 2004 are 22 lakh 8,000.
On 1st of Jan 2004, the issued share capital of Gerard was 82 lakh 80,000 ordinary shares of $1 each. The company issued 33 lakh 12,000 shares at a full market value on 30th June 2004. Calculate the EPS for Gerard for 2004. ठीक है. हाउ डू वी, अब यहाँ पे आपका टोटल अर्निंग्स है 22 लाख 8,000. इशूड शेयर कैपिटल है 1st of Jan को 82 लाख 80,000. दिस वॉज आउटस्टैंडिंग फॉर फुल 12 months. ठीक है. एंड द कंपनी इशूड 33 लाख 12,000 शेयर एट फुल मार्केट वैल्यू ऑन विच डेट, ऑन 30th June. मेरा ईयर एंड होता है 31st of December को. सो 33 लाख 12,000 शेयर्स जो है, दोज वर आउटस्टैंडिंग फॉर हाउ मेनी मंथ्स? दोज वर आउटस्टैंडिंग फॉर 6 months. करेक्ट. राइट। तो अगर मुझे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है तो हाउ विल आई डू इट? 82 लाख 80 इंटू 12/12 एंड 33 लाख 12,000 इंटू 6 बाय 6/12 विच इज 99 लाख 36,000. तो मेरा ईपीएस कितना आएगा? 22 लाख 8,000 अपॉन 99 लाख 36,000. गॉट ठीक है. इट। हम्म। सिंपल कैलकुलेशन एंड द नेम ऑल्सो इज बेसिक ईपीएस. ठीक है. ओके। इसको देखते हैं. सिमिलर कैलकुलेशन है. An entity with a year end of 31 December 2008 issued 2 lakh shares at full market price of $3 on 1st of July 2008. What is profit attributable to ordinary shareholders for the year ending 31st of December? 5,50,000. ठीक है. हम्म। 2007 में है 4,60,000. एंड नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स इन इशू एट 31st of December 10 लाख, यहाँ पे 8 लाख. 2007 में मेरा ओपनिंग शेयर्स था 8 लाख. 2007 में कोई शेयर इशू हुआ था? एक बार रीड द क्वेश्चन. यस, 2 लाख। 2007 में हुआ था. रीड टू इट. थाउजेंड एट में। नहीं. माय क्वेश्चन इज 2007 में हुआ था? नहीं. नो नो नो। सो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग शेयर्स वर 8 लाख, outstanding for 12 months. So weighted average number of shares will again be 8 lakh. राइट। ओके. नाउ अर्निंग्स पर शेयर अगर आपको निकालना है तो दैट विल बी प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. 4,60,000 अपॉन 8 लाख, दैट इज 0.575. अब ये जो 10 लाख है, डू यू अग्री दिस 10 लाख इन 2008 इज 8 लाख प्लस टू यस। लाख यस। अगर आपको वेटेड एवरेज निकालना है तो समझो 8 लाख इज आउटस्टैंडिंग फॉर 12 मंथ्स. 8 लाख प्लस 2 लाख कंपनी ने किया, कंपनी का हो गया 10 लाख. ठीक है. लेट अस से इट इज आउटस्टैंडिंग ओनली, लेट अस से नहीं, इट इज आउटस्टैंडिंग ओनली फॉर 6 मंथ्स. 1st of July को शेयर इशू हुआ था, राइट। है ना. तो 1 लाख हो जाएगा वेटेड एवरेज के कैलकुलेशन में. हम्म। इसको देखिए. 8 लाख इंटू 12/12, 2 लाख इंटू 6/12. यस यस। So this is how EPS is calculated. This is called basic EPS. ठीक है. ओके। इसमें एक और चीज लेट्स अंडरस्टैंड विच इज बोनस इशू. अब बोनस इशू क्या होता है? व्हाट हैपेंस इन कंपनीज इज when the company accumulates profits or when the company has a large quantity of reserves, what it does is वो अपने existing shareholders को it gives them certain free shares. See, usually जब when the company issues shares तो it gives you shares and in exchange you have to give cash to the company. तभी जाके आपको एक you get allocated one share or one ownership right in the company. Do you agree? यस। बट द रीजन वाई वी कॉल इट बोनस इशू इज बिकॉज कंपनी आपसे कुछ पैसा नहीं ले रही है. कंपनी इज गिविंग यू शेयर्स फॉर फ्री. बट अगर इफ यू रियली थिंक अबाउट इट ना, ऐसा कुछ अलग आपको नहीं मिल रहा है. सी, कंपनी हैज अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ओवर ईयर्स, और when company issues shares, sometimes the shares are issued at a premium.
करेक्ट। राइट। फेस वैल्यू 10 रुपीज होता है, इशू प्राइस 100 रुपीज होता है, 90 रुपीज इज द शेयर प्रीमियम। अब ये शेयर प्रीमियम का पैसा तो आपसे ही लिया है कंपनी ने, राइट? हम्म। कभी कभी if the company wants to make you happy, if the company has certain expansion plans and they need a certain number of shares in the denominator। अब जैसे इंश्योरेंस एक्ट इन इंडिया, इट मेक्स इट मैंडेटरी, अगर उसने बोला कि यार तुम्हारे कंपनी में ना 10 लाख शेयर्स होने चाहिए, लाइक फॉर आई हैव सीन दिस विद अ क्लाइंट ऑफ माइन, कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI, उन्होंने बोला कि यार देखो, एनी इंश्योरेंस ब्रोकर शुड हैव 10 लाख शेयर्स, उसके नीचे नहीं हो सकता। ओके। अब कंपनी के पास थे 5 लाख शेयर्स, एंड if it goes to the shareholders are not willing to subscribe to more shares, they don't have probably the market sentiment is not right or they don't have enough cash। तो ऐसे केस में कंपनी क्या करता है? कंपनी कन्वर्ट्स इट्स एग्जिस्टिंग रिजर्व्स और एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम, उसी को कंपनी कन्वर्ट कर देता है इनटू इक्विटी शेयर्स। तो जो शेयर प्रीमियम नाम का पैसा आपसे लिया था, उसी को कन्वर्ट करके कंपनी बना देता है, इट कन्वर्ट्स दैट इनटू इक्विटी शेयर्स। ठीक है। सो if see norm in this situation there is no cash that is coming in, ठीक है, which is why we call these free shares। आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सिक्योरिटीज प्रीमियम नाम का आइटम ऑलरेडी बैलेंस शीट में था, अंडर द हेडिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस। आपने बस उसको कन्वर्ट कर दिया इनटू इक्विटी शेयर्स। सो एट द टाइम ऑफ बोनस इशू का एंट्री होता है शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सी ये रिजर्व्स अल्टीमेटली बिलोंग टू शेयर होल्डर्स ओनली, एंड दीज रिजर्व्स हैव बीन इन एग्जिस्टेंस पहले से, आपने बस उसका फॉर्म कन्वर्ट कर दिया। सो वी ऑल्सो कॉल इट कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स इन अ सर्टन सेंस। आपका ही जो आपसे ही पैसा लिया था मैंने शेयर प्रीमियम के नाम पे, या इन सर्टन केसेस जो मैंने प्रॉफिट कमाया था विच वाज accumulated, I am just converting that, I am changing the form and I am converting it into equity shares। अब पिछले 18 months में so many companies have given bonus shares। रिलायंस ने बोनस दिया, फिर नेस्ले इंडिया ने बोनस दिया, विप्रो ने बोनस दिया। सो आई वॉज होल्डिंग 30 शेयर्स इन विप्रो, तो मुझे हम्म। 30 के सामने और 30 मिल गए। मेरा वेल्थ चेंज नहीं हुआ, बिकॉज सी टेक्निकली वो एक लाइन आइटम से बदल के दूसरे लाइन आइटम में जा रहा है ना। राइट। अकाउंटिंग एंट्री शेयर प्रीमियम जिसमें क्रेडिट बैलेंस था, उसको मैं डेबिट कर रहा हूँ, शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो ऐसा कुछ चेंज नहीं हो रहा है, बट शेयर होल्डर्स गेट अ लार्जर नंबर ऑफ शेयर्स इन देयर नेम। ठीक है। सी बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यार ये जो शेयर प्रीमियम था ये पहले से एग्जिस्टेंस में था, राइट? हम्म। मतलब कुछ नया नहीं मिल रहा है। अब समझो किसी क्वेश्चन में आपको दिया कि यार अ बोनस इशू वाज डन ड्यूरिंग द ईयर ऑन 1 जुलाई 2008, ईयर एंड्स ऑन 31 दिसंबर। आपने अभी अभी सीखा हाउ टू कैलकुलेट अ वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो यू विल गेट एक्साइटेड एंड यू वुड वांट टू मल्टीप्लाई इट बाय इनटू 6/12। ऐसा आपका करने का मन करेगा। बट द पॉइंट दैट यू नीड टू कीप इन माइंड इज कि this particular calculation cannot be दिस पर्टिकुलर कैलकुलेशन ऑल्दो हम फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स के लिए करते हैं, यहाँ पे सिर्फ अकाउंटिंग एंट्री अभी हो रहा है, वो शेयर प्रीमियम तो पहले से पड़ा था ना विद द कंपनी। सो राइट। जहां जहां पे बोनस इशू होगा किसी भी क्वेश्चन में, यू विल नॉट मल्टीप्लाई, इवन इफ इट इज हैपनिंग ऑन 1 जुलाई, यू विल नॉट मल्टीप्लाई इट बाय 6/12, बिकॉज वो शेयर प्रीमियम पहले से एग्जिस्टेंस में था, राइट? इट्स नॉट एज इफ कुछ फ्रेश इशू हुआ है इन दैट सिचुएशन। सो बोनस इशू जब होगा, in that case we will take bonus shares outstanding for full 12 months। ठीक है। ओके। एक बार हैव अ लुक। श्योर। So can you please scroll? श्योर।
जस्ट राइट दिस डाउन, ये जो नोट लिखा है ना, ये एंट्री हम्म। लिखिए एंड ओके। ये नोट लिखिए। ओके। लिख लिया? यस सर। So in certain questions, this might come across as a calculation key. During the year, a bonus issue happened, and then you will have to recalculate certain numbers. अब जब बोनस इशू होता है, देर इज वन पिक्यूलियर थिंग दैट वी हैव टू डू। जो पुराने साल का ईपीएस होता है ना, वी हैव टू रीस्टेट दैट पर्टिकुलर ईपीएस। मतलब लास्ट ईयर का कैलकुलेशन भी आपको नए से करके देना है टू द शेयर होल्डर्स। व्हाई? बिकॉज बोनस शेयर्स, एज वी डिस्कस्ड, हैव ऑलवेज बीन इन एग्जिस्टेंस। करेक्ट? हम्म। यस। Have a look. An entity makes a bonus issue of one new share for every five existing shares held on 1st of July 2008. Profit attributable to equity shareholders is given to you for 2007 and for 2008. And then they have also given you a number of ordinary shares in issue at 31st of December. ठीक है? अब सी 2007 का ईपीएस अगर आप निकालते तो यू वुड हैव डन 4,60,000 अपॉन 10 लाख। ठीक है? और ये जो 2008 का है, हाउ विल यू कैलकुलेट द ईपीएस? 5,50,000 अपॉन 12 लाख। वाई 12 लाख? देखो, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था 10 लाख शेयर्स। ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख शेयर्स वर इशूड, राइट? ये 2 लाख कैसा है? वन बोनस शेयर फॉर एवरी फाइव एग्जिस्टिंग शेयर्स। अगर आपके पास 5 शेयर है तो उसके बदले में आपको मिल रहा है 1 शेयर। ठीक है? राइट। 5 के बदले में 1 मिल रहा है आपको। तो ये 2 लाख शेयर्स जो है, देखो यहाँ पे क्या लिखा था? यहाँ पे लिखा था इशू 2 लाख शेयर्स एट फुल मार्केट प्राइस ऑफ $3। ठीक है? यहाँ पे बोनस इशू हुआ है। सो विल यू डू इंटू 6/12 और यू विल जस्ट टेक दैट अमाउंट? जस्ट टेक दैट अमाउंट। जस्ट टेक दैट अमाउंट। तो 10 लाख प्लस 2 लाख, पूरा 12 लाख आपको लेना पड़ेगा इन द डिनोमिनेटर। हम्म। Right. So 5,50,000 upon 12 lakh, 0.458 will be your current year का EPS. Now IAS 33 says कि जब जब बोनस इशू होता है, under all those circumstances, ठीक है, whenever there is a bonus issue, previous year का EPS also gets restated. मतलब बिकॉज सी वी हमारा क्या क्लेम है कि भाई ये तो पहले से एग्जिस्टेंस में था, अभी बस ये कन्वर्ट हो गया इनटू इक्विटी शेयर्स। तो राइट। पिछले साल का जो ईपीएस था उसको भी आपको रीस्टेट करना पड़ेगा, विच विल बिकम 4,60,000 अपॉन 12 लाख। सो दिस विल बिकम योर रीस्टेटेड ईपीएस। दिस वॉज नॉट योर ओरिजिनल ईपीएस। लास्ट ईयर आपने कोई अलग सा कैलकुलेशन किया था, बट दिस ईयर वी हैव कन्वर्टेड दैट इनटू इक्विटी शेयर्स। एंड मतलब अपना बोनस इशू हो गया। एंड दिस बिकम्स आर कैलकुलेशन फॉर रीस्टेटेड ईपीएस। ठीक है? ओके। हम्म। एक बार हैव अ लुक। श्योर। We have nothing new here. यस डन। Okay. Now the next question, एक minute, हाँ, let me just stop my screen share. Next हम्म। question I would want to give you
2 minutes to think and attempt on your own, and then of course, we'll do it together. Okay. Have a look. An entity had 1 million shares in issue on 1st of Jan 2001. They issued 2 lakh shares at market value on 1st of April 2001, followed by a 1 for 5 bonus issue on 1st of August 2001, with a further 3 lakh issued at market value on 1st of October. 1 million shares were there on 1st of Jan, so outstanding for 12 months. Then 2 lakh shares were issued on 1st of April. तो अप्रैल से लेके दिसंबर तक 9 मंथ्स, तो आउटस्टैंडिंग फॉर 9 मंथ्स. देन राइट। 1 for 5 बोनस इशू में आपने कैसे कैलकुलेट किया? द फुल उसका लेके विदाउट मल्टीप्लाइंग इट। नहीं नहीं, बट कितने शेयर्स पकड़े आपने? 1 for 5 लिखा है ना, तो फॉर एवरी 5 शेयर सेल यू आर गेटिंग 1 बोनस शेयर. तो आपने कैसे कैलकुलेट किया बताइए? शुड वी डिवाइड इट बाय, लाइक, शुड वी डिवाइड इट बाय 6/5, राइट? नो भाई, 6/5 कहाँ से आया? फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड यू आर गेटिंग 1 शेयर ना. तो आज जिसके पास 5 शेयर है उसको एक मिल रहा है. यहाँ पे है शेयर्स ऑलरेडी हेल्ड, यहाँ पे है बोनस. शेयर्स ऑलरेडी हेल्ड 5 है, उसके अगेंस्ट एक मिल रहा है. तो अभी मुझे बताइए, ऑन 1st of August 2001 हाउ मेनी शेयर्स आर ऑलरेडी हेल्ड इन द कंपनी? कितने शेयर्स ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग है ऑन 1st of August? 1 million शेयर्स ऑन 1st of Jan, प्लस न्यू शेयर्स इशू हुए ऑन 1st of April 2 लाख. तो कितने लाख। शेयर्स आउटस्टैंडिंग हो गए? 12 लाख. 12 लाख, 5 के राइट। अगेंस्ट एक, तो 12 लाख के अगेंस्ट कितना? 2,40,000 ना. ओके, यस, गॉट इट। आपने क्या किया कैलकुलेट? एक्चुअली मेरे को यहीं पे कंफ्यूजन हो रहा था, तो मैंने कैलकुलेट नहीं करा। मुझे यही डाउट था कि इसको लेंगे कैसे एक्चुअली। अभी समझा? यस। कैन आई सी इट वंस अगेन? यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देखिए. ओके। सर, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे आप? आई नीड टू सी द क्वेश्चन एज वेल। थैंक यू। ओके, गॉट इट। एंड 3 लाख शेयर्स वर आउटस्टैंडिंग फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 3 मंथ्स. तो इंटू 3/12 करना पड़ेगा आपको. यस। राइट. सो 10 लाख आउटस्टैंडिंग फॉर 12 मंथ्स, 2 लाख आउटस्टैंडिंग फॉर 9 मंथ्स. फिर ये 2,40,000 शेयर्स, यू विल से दैट दे हैव ऑलवेज बीन देयर विद द कंपनी, राइट? राइट। सो कैलकुलेशन भी मैंने लिखा है साइड में, एक बार देख लीजिए हाउ हाउ दैट हैज बीन कैलकुलेटेड. ठीक है. सो व्हाट इज यस। योर वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स इज 14,65,000. आपका न्यूमरेटर कितना है? न्यूमरेटर इज योर प्रॉफिट, राइट? प्रॉफिट इज 2,20,000. सो 2,20,000 अपॉन 14,65,000, you will get your weighted average number of equity shares. 14,65,000, 220 upon 14,65 will get you your EPS. ठीक ओके। है. सो आपका EPS हो जाएगा 2,20,000 divided by 0.15. ठीक है. ओके। Now, let's talk about a situation called rights issue. Now, what is a rights issue? See, when the, say for example, there are 3 shareholders, Satyamed, Mansha, and a third person. Okay. Now, I have
100 shares, you have 100 shares and the third person also has 100 shares. So each of us is 33.33% का owner in the company. राइट। ठीक है. नाउ इफ द कंपनी नीड्स मोर मनी, कंपनी को ज्यादा पैसा चाहिए, वन थिंग दैट द कंपनी कैन डू इज दे कैन raise money by way of issuing more shares to the public. But when the company issues more shares, कोई एक बाहर का आएगा एंड नाउ ही विल ओन 100 shares. सो मेरा 100, आपका 100, आपके डैड का 100, दीज आर थ्री ओरिजिनल शेयर होल्डर्स. और एक नया फोर्थ शेयर होल्डर पिक्चर में आ गया, उसके पास भी 100 शेयर्स हो जाएंगे. सो 100, 100, 100, 100, चार लोगों के पास 100 हो गए. अब आपके मेरे 100 कम नहीं हुए, बट डू यू अग्री कि हमारा परसेंटेज शेयर होल्डिंग 100/400 होके सिर्फ 25% बच गया अभी. यस, यस। राइट. जस्ट गिव मी वन मोमेंट. श्योर। सो व्हेन दिस फोर्थ शेयर होल्डर कम्स इन, कंपनी को पैसा तो मिलेगा, बट क्या होगा, हमारा परसेंटेज शेयर होल्डिंग इन द कंपनी विल गेट, वो कम हो जाएगा. 33.33% का 25% हो जाएगा. सो शेयर होल्डर्स आर नॉट ऑलवेज हैप्पी इफ देयर होल्डिंग इन द कंपनी, इफ देयर स्टेक इन द कंपनी गेट्स डाइल्यूटेड. तो शेयर होल्डर्स का कहना है कि यार बिफोर यू गो एंड टेक मनी फ्रॉम आउटसाइडर्स, हमारे पास फर्स्ट राइट या हमारे पास फर्स्ट प्रिविलेज होना चाहिए टू बाय द शेयर्स ऑफ द कंपनी. ठीक है. अगर हमने मना किया तो तुम बाहर वाले के पास जाओ, बट अनलेस वी से नो, डोंट गो एंड रेज मनी फ्रॉम एन आउटसाइडर. ठीक है. दिस इज माई एक्सपेक्टेशन एज अ शेयर होल्डर. तो I get the first right to subscribe to the equity shares of the company as an existing shareholder. अगर मैंने मना किया तो you go to an outsider. So what the company does is before issuing shares to outsiders, it issues shares to the existing shareholders of the company. ठीक है. What it does is it issues shares to the existing shareholders of the company in proportion to the number of shares they already hold, so that उनका percentage shareholding does not go down. They get the first right. बट इफ दे से नो कि यार हमें ये शेयर नहीं चाहिए, बिकॉज यू नो वी आर नॉट इंटरेस्टेड, वी आर ओके इफ द परसेंटेज शेयर होल्डिंग गोज डाउन, अब तुम बाहर वाले को दो. वंस दे से नो, देन यू कैन गो एंड रेज मनी फ्रॉम आउटसाइडर्स. दिस इज नोन एज अ राइट्स इशू. अब जब राइट्स इशू होता है, तो इफ द मार्केट प्राइसेस से ₹3 per share, तो rights issue is always done to the existing shareholders at a price which is lower than the current market price. तो अगर market price 3 होगा, तो rights issue can happen at 2.6, 2.5, 2.4, whatever that number is. ठीक है. So rights issue will happen at a value which is slightly lower than the market price per share. ठीक है. Whenever you say that there are X number of right shares, what that means is आपको in proportion to the number of shares that you already hold in the company, you get some more shares. ठीक है. अब आप समझो कि आपके पास है ₹20,000 कैश. ठीक है. मार्केट में अगर आप खरीदने जाओ शेयर, तो वन शेयर इज फॉर ₹100. ठीक है. तो आपके पास 20,000 शेयर है उस, और एक शेयर का मार्केट प्राइस है ₹100. आप कितने शेयर खरीद पाओगे? सो सॉरी सर, कैन यू रिपीट हाउ मेनी शेयर्स? वही तो मैंने पूछा. द नो, नो, 100 per share? 100 per share is the market price per share and the ओके। total funds available with you are 20,000. तो आप कितने shares खरीद पाओगे? If you have ₹20,000 and price of one 200। share is 100, कितने खरीद पाओगे आप? 200 share। 200 शेयर्स. अब राइट्स इशू में क्या हो रहा है, आपको सेम शेयर जिसका मार्केट प्राइस है 100, द कंपनी इज ऑफरिंग दैट शेयर टू यू फॉर ₹80. तो आप उसमें कितने शेयर्स खरीद पाओगे? आपके पास ₹20,000 है एंड आपको एक शेयर 100 का नहीं 80 का मिल रहा है, तो आप कितने में खरीद पाओगे? 250। 250, right? 2000, sorry, 20,000 upon 80, that is 250. So do you agree कि उतने ही पैसे में अदरवाइज आपको 200 शेयर मिलते, आपको बिकॉज ऑफ द रिड्यूस्ड प्राइस आपको 250 शेयर्स मिल गए, राइट? राइट। तो डोंट यू थिंक ये 50 शेयर्स जो एडिशनल आपको मिले, दैट इज लाइक फ्री शेयर्स विच आर गिवन टू यू, यस। राइट? सो डू यू अग्री दैट इन द राइट्स इशू देयर इज अ सर्टेन बोनस एलिमेंट ऑल्सो इन्वॉल्व, यस। है ना? ओके. सो हैव अ क्विक लुक एट दिस वंस फ्रॉम हियर अप टू हियर. एक बार देखिए इसको. ओके।
डन सर। डन, ओके। नाउ, अगर आपको, यू हैव अ सिचुएशन ऑफ राइट्स इशू, ठीक है, तो और अगर क्वेश्चन में आपको राइट्स इशू दिया है और आपको ईपीएस निकालना है, सो देयर इज अ 4 स्टेप प्रोसेस टू कैलकुलेट ईपीएस। स्टेप वन, वी कैलकुलेट समथिंग दैट इज नोन एज थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस। एक्स राइट प्राइस मतलब राइट्स का पोर्शन हटा के व्हाट इज द प्राइस आफ्टर द राइट्स इशू हैज हैपेंड। हाउ डू वी कैलकुलेट दैट? TERP is number of shares held into market price per share plus right shares issued, मतलब जो fresh shares issue हुए to the existing shareholders into issue price, this will be slightly lower than the market price divided by total number of shares in issue। फिर हम निकालेंगे बोनस फ्रैक्शन। कैसे निकलेगा बोनस फ्रैक्शन? मार्केट प्राइस बिफोर इशू अपॉन TERP। स्टेप थ्री निकालेंगे वेटेड एवरेज। स्टेप फोर होगा ईपीएस। अब ये कैसे करना है, आई विल शो दैट टू यू वाया 2 क्वेश्चंस, ठीक है, बट बिफोर ओके। टू दैट आई वांट यू टू राइट डाउन द 4 स्टेप्स इन योर नोटबुक। ओके। डन सर। ओके, नाउ let's look at this simple sa question. An entity issued one new share for every two existing shares held by way of a rights issue at 1.5 per share on 1st of July 2008. Pre-issue market price was $3 per share. Relevant information is given to you, which is profit available to equity shareholders and number of ordinary shares in issue. ठीक है, अपने को निकालना है थियोर वी हैव टू कैलकुलेट अर्निंग्स पर शेयर। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू डू दैट फॉर 2008 फर्स्ट। देखो 2007 का इंफॉर्मेशन अगर आप देखेंगे तो 2007 में कोई फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स हुआ था? नो। नो। तो 2007 का तो बड़ा ही सिंपल सा कैलकुलेशन होगा। 4,60,000 अपॉन 8 लाख विच इज 0.575। मेक सेंस? यस। ओके। यस यस। नाउ 4,60,000 डिवाइडेड बाई 8 लाख इज 0.575, वो तो ठीक है। 2008 में आप देखिए कंपनी ने क्या किया, 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर्स हेल्ड बाय द बाय वे ऑफ राइट्स। सो ऑलरेडी हेल्ड अगर 2 है तो बोनस कितना मिल रहा है? 1। ठीक है, इफ ऑलरेडी हेल्ड 2 है तो बोनस मिल रहा है 1। आपके पास ऑलरेडी हेल्ड कितना था? 8 लाख था। हम्म। तो बोनस कितना मिलेगा? 8 लाख इंटू 1/2, 4 लाख। कूल। ठीक है, अब अपने को निकालना है थियोरेटिकल एक्स, मतलब वी हैव टू कैलकुलेट द बोनस, मतलब वी हैव टू कैलकुलेट ईपीएस। फॉर दैट वी हैव टू कैलकुलेट हम्म। स्टेप वन में थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस। ये कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड, पहले कितने शेयर थे? 8 लाख शेयर्स थे। राइट। बिफोर राइट्स इशू कितने थे? सी, ये बोनस नहीं है, ये राइट्स है, हाँ, 8 लाख। सॉरी ये राइट्स इशू है। ओके। 8 लाख थे। मार्केट प्राइस कितना था? हम्म।
प्री इशू मार्केट थ्री। प्राइस वॉज 3 प्लस शेयर, सो 8 लाख इंटू 3। राइट, यहाँ पे लिखा है ना प्री इशू मार्केट यस प्राइस वॉज यस। 3। सो राइट्स इशू के पहले 3 था, सो 8 लाख इंटू 3। एंड राइट्स इशू कितने में मिला? 1.5 में मिला, तो आपको सस्ते में मिल रहा है, राइट। हाँ जी। ओके, सो प्लस राइट शेयर्स इशूड इनटू इशू प्राइस, 4 लाख इंटू 1.5। ठीक है, ओके। डिवाइडेड बाय 8 लाख प्लस 4 लाख, हम्म। डिनोमिनेटर है आपका 12 लाख। यहाँ पे आपको लग रहा था कि 8 + 4 12 है ना, आपके हाँ पास जी। ऑलरेडी 8 है, प्लस आपने 4 लाख शेयर्स और इशू कर दिए। हाँ जी। डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा आपका? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इन इशू 12 लाख। सो TERP विल बी 8 लाख इंटू 3 + 4 लाख इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 12, यू विल गेट 2.5। ओके। राइट, सो व्हाट दिस नंबर इज कॉल्ड थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस। अब अपने को निकालना है बोनस फ्रैक्शन। बोनस फ्रैक्शन इज मार्केट प्राइस बिफोर इशू। बिफोर इशू कितना था? 3 डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस 2.5। तो बोनस फ्रैक्शन विल बी 1.2। 3 डिवाइडेड बाय 2.5। फेयर इनफ। यस। अब निकालते हैं वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। ओपनिंग बैलेंस, देखो आपका राइट्स इशू कब हुआ? 1 जुलाई को हुआ। तो 8 लाख शेयर्स वर आउटस्टैंडिंग फॉर हाउ लॉन्ग? 6 मंथ्स के लिए यू हैड 8 लाख शेयर्स, है ना। यस। सो 8 लाख ये, एंड राइट्स इशू हुआ 1 जुलाई को, तो ये हो गए 4 लाख शेयर। सो टोटल इज, देखो राइट्स इशू 4 लाख का हुआ, तो 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक हाउ मेनी शेयर्स वर आउटस्टैंडिंग? ट्वेल्व 12। लाख शेयर्स वर आउटस्टैंडिंग। तो ये 12 लाख का अगर आपको वेटेड एवरेज निकालना है तो आप क्या करेंगे? पे अटेंशन, यहाँ पे ना कैलकुलेशन इज डिफरेंट। हाउ डू यू कैलकुलेट वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू बोनस फ्रैक्शन इनटू आउटस्टैंडिंग पीरियड। ठीक है, यहाँ पे आप निकालो 1 जन से 30 जून तक कितने शेयर्स थे? 8 लाख शेयर्स थे, इंटू बोनस फ्रैक्शन 3 × 2/5। ठीक ओके। है, 8 लाख इंटू बोनस फ्रैक्शन क्या था? 3/2.5, नॉट 4। 3/2.5 हम्म। इंटू आउटस्टैंडिंग पीरियड। कैसे निकलेगा आउटस्टैंडिंग पीरियड? 6/12। वाई 6/12? बिकॉज 6 महीने के लिए 8 लाख शेयर्स वर आउटस्टैंडिंग, राइट। यस गॉट इट। अगले 6 महीने के लिए फिर और 4 लाख बोनस शेयर्स इशू हो गए, तो हाउ मेनी शेयर्स आर आउटस्टैंडिंग? 12 लाख शेयर्स आर आउटस्टैंडिंग। हम्म। करेक्ट। इसमें आप क्या करेंगे? हाउ डज दिस पार्ट वर्क? यहाँ पे सी, अभी द बोनस एलिमेंट हैज ऑलरेडी बीन इनकॉर्पोरेटेड, है ना। बोनस एलिमेंट, तो यहाँ पे बोनस फ्रैक्शन आपने लगा दिया, राइट। राइट। हाँ यहाँ पे जी। आप क्या करेंगे? 12 लाख फॉर आउटस्टैंडिंग इंटू 6/12। ओके। ठीक है, यहाँ पे बोनस फ्रैक्शन लगाइए, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू बोनस फ्रैक्शन इनटू आउटस्टैंडिंग पीरियड। यहाँ पे आप 12 लाख इंटू 6/12 जो नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं वो कीजिए। ठीक है, द नंबर दैट यू विल गेट इज योर वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। यहाँ पे कैलकुलेशन अलग है एज कंपेयर टू व्हाट वी हैव सीन सो फार। एक बार ऑब्जर्व कीजिए इसको। श्योर। So why have we done particularly this of calculation over here? बिकॉज सी देयर इज अ फ्री एलिमेंट ऑल्सो इन्वॉल्व, राइट, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। इन दिस सिचुएशन, जो आपको भी जो मैंने एग्जांपल दिया था वहां पे देयर वाज अ फ्री एलिमेंट इन्वॉल्व। व्हाई? बिकॉज हम्म। द इशू प्राइस ऑफ द राइट शेयर्स वाज लोअर देन द मार्केट प्राइस। अगर आप मार्केट से खरीदने जाते तो यू वुड बेसिकली हैव टू पे, आफ्टर पेइंग दैट अमाउंट यू वुड गेट से 100 शेयर्स। बट यहाँ पे बिकॉज द प्राइस पर शेयर, इशू प्राइस पर शेयर वाज लोअर, आपको उसी पैसे में ज्यादा शेयर्स मिले, राइट। राइट।
So there was a free element involved. That Mhm. free element is your bonus fraction Okay. for that reason. और ये Okay. 8 lakhs पे मिला आपको, विच इज वाई वी आर मल्टीप्लाइंग दैट 8 lakhs इनटू बोनस फ्रैक्शन इनटू आउटस्टैंडिंग पीरियड। Okay. Got it. ठीक है। एंड देन ईपीएस का कैलकुलेशन तो यू नो दैट इज नॉट एनी। Mhm. ठीक है, हैव अ लुक। ठीक है, हाँ जी, गॉट। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक बार हैव अ लुक एट द क्वेश्चन, read the question once. Show calculation of basic EPS to be presented in the financial statements for year ended 31st of December 2002. Mhm. On 31st of December 2001, the issued share capital consisted of 40 lakh ordinary shares of 25 cents each. On 1st of July 2002, the entity made a rights issue in proportion of 1 for 4 for 50 cents per share, and the shares were quoted immediately before the issue at $1. Its trading results for the last 2 years were as follows. In which year did the bonus issue happen? Sorry, in which year did the rights issue happen? What date? चलो डेट बताओ पहले। July 1st, 2002. 1st of July 2002 को राइट्स इशू हुआ। ठीक है। नाउ, नाउ टेल मी, इन दिस केस साल के स्टार्टिंग में यू हैड 40 लाख शेयर्स, करेक्ट? Right. है ना? साल के स्टार्टिंग में यू हैड 40 लाख शेयर्स, एंड उसके बाद उसका फेस वैल्यू तो चलो 25 सेंट्स था। शेयर्स वर कोटेड इमीडिएटली बिफोर द राइट्स इशू फॉर $1। व्हाट इज द राइट्स इशू का प्रोपोर्शन? 1 for 4। ठीक है। Mhm. तो जिसका ऑलरेडी हेल्ड 4 है, उसको राइट्स मिल रहा है 1। ठीक है। जिसका ऑलरेडी हेल्ड होगा 40 लाख, उसको कितना मिलेगा? 1. 10 10 लाख। lakhs. ठीक Yes. है। सो अगर अपने को, एंड हाँ, व्हाट इज द इशू प्राइस? दे वर इशूड फॉर 50 सेंट्स पर शेयर। मार्केट प्राइस है $1, राइट्स इशू कितने में मिला? 50 में मिला। तो कुछ देर इज अ, एक कम प्राइस में मिला आपको, राइट? Right. डिस्काउंटेड प्राइस में मिला। सो देर इज अ फ्री एलिमेंट इन्वॉल्व हियर। सबसे Right. पहले वील कैलकुलेट थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस, वी हैव द फॉर्मूला। ठीक है। लुक एट द कैलकुलेशन, 40 लाख इंटू 1 प्लस 10 लाख इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 50 lakhs। Mhm. ठीक है। अब Yes. बोनस फ्रैक्शन कैसे निकलता है? बोनस फ्रैक्शन इज मार्केट प्राइस बिफोर इशू डिवाइडेड बाय TERP, 1/0.9। Yes. अब वेटेड एवरेज का कैलकुलेशन देखिए। 40 lakhs फॉर आउटस्टैंडिंग फ्रॉम जैन टू जुलाई, और Mhm. इसमें आपको राइट्स इशू मिला है, राइट, इन प्रोपोर्शन टू दीज Mhm. शेयर्स। सो आप वेटेड एवरेज कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स इंटू बोनस फ्रैक्शन इंटू 6/12। Okay. ठीक है। अब राइट्स इशू कब हुआ आपका? 1st of July को हुआ। First July. ठीक है। कितना? 10 लाख शेयर्स। उसके बाद शेयर्स आउटस्टैंडिंग जुलाई टू दिसंबर, है ना? आई शुडंट कॉल दिस जैन टू जुलाई, आई शुड कॉल दिस जैन टू जून, बिकॉज 1st of July को हुआ तो Mhm. 6 मंथ्स का हो जाएगा। ठीक है। इसमें आपको सीधा सीधा कैलकुलेट करना है, 50 लाख इंटू 6/12, 25 लाख। ठीक है। Yes. तो दिस इज योर Mhm. वेटेड एवरेज नंबर। प्रॉफिट का फिगर आपको दिया है, यू विल गेट योर अर्निंग्स पर शेयर। Yes. Got आर it. यू विथ मी? Yes, sir. ओके। अब ये हो गया अपना बेसिक ईपीएस। बेसिक ईपीएस हमने कैसे कैलकुलेट किया? प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। पेपर में 3 सिचुएशंस पॉसिबल है। ठीक है। व्हाट आर द 3 सिचुएशंस? सिचुएशन 1 इज व्हेन रेगुलर कैलकुलेशन होगा आपका। सिचुएशन 2 व्हेन देयर इज अ बोनस इशू। Mhm. सिचुएशन 3 व्हेन देयर इज अ राइट्स इशू। अब हम एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, विच इज बेसिकली कॉल्ड डाइल्यूटेड ईपीएस। Okay. अब एफ अकाउंटिंग वकाउंटिंग सब छोड़ो, मुझे डाइल्यूट डाइल्यूट का मतलब बता सकते हो आप? Uh,
लाइक बेसिकली किसी चीज़ को एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल, दैट्स आल्सो ओके। ओके, फॉर सपोज आपने एग्जांपल। शरबत बनाया, ठीक है। हाँ जी, आपने सो विल ऐड उसमें मोर वाटर टू। 2 चम्मच शक्कर डाल दिया, somebody says it's too sweet, तो आप क्या करेंगे, यू विल पुट सम वाटर, राइट, राइट, सो वो उसका एडजस्ट हो जाएगा, राइट। सो व्हेन यू आर राइट, एडिंग मोर वाटर, यू आर डाइल्यूटिंग द शुगर का कॉन्सेंट्रेशन इन दैट शरबत दैट यू हैव मेड। यस, यस। सो diluted EPS is a very interesting concept. Dilute matlab anything that has the potential to reduce the earnings per share. ठीक है। Now let's talk about an item which is called, matlab let's talk about a specific type of financial instrument which is called convertible loan. अब convertible loan क्या होता है? See, loan usually what is the idea behind a loan कि मैंने पैसा रेस किया, मैंने पैसा वापस कर दिया, simple. Borrow राइट, money, repay money. In certain cases, what companies do is they give a convertible loan. Convertible loan में क्या होता है कि I raise money from मैंने बैंक से लोन लिया, या मैंने किसी I issued debentures या I issued bonds and I raised money by way of debentures or bonds. बैंक लोन तो चलो आप रीपे कर देते हो. In some cases, when you raise money by way of bonds or debentures, we have the facility to issue convertible bonds or convertible debentures. अब convertible bonds और convertible debentures में क्या होता है कि you have a certain number of bonds in issue. ठीक है। तो what the company says is कि आप हमें पैसा दो 10 लाख रुपीज, उसके बदले में हम आपको बॉन्ड्स दे रहे हैं। नॉर्मली वी वुड हैव रीपेड द मनी ऑन बॉन्ड्स। इन सम केसेस व्हाट द कंपनी डज इज, द कंपनी सेज कि लिसन, ये बॉन्ड के अगेंस्ट ना 5 साल के बाद यू हैव एन ऑप्शन, इधर अपना पैसा लो और निकलो, या फिर वी विल कन्वर्ट दिस बॉन्ड इनटू इक्विटी शेयर। अब शेयर प्राइसेस यूजुअली आर एक्सपेक्टेड टू गो अप, राइट। यस। तब आज मैंने जैसे स्टेट बैंक का शेयर 700 रुपए में खरीदा था, आज वो 1100 रुपए पे है। तो और सी बॉन्ड्स में क्या है, मैंने 100 रुपया लिया, 100 रुपया वापस कर दिया। तो बॉन्ड्स बियॉन्ड द पॉइंट आर नॉट वेरी अट्रैक्टिव, दे आर सेफ बट दे आर नॉट वेरी अट्रैक्टिव। शेयर्स कैन बी वेरी अट्रैक्टिव, वाई? बिकॉज जो चीज आपने 700 रुपये दे के आज ली है, उसका वैल्यू कैन गो अप इन द फ्यूचर। अब मेरे पास जो स्टेट बैंक के 40 शेयर्स है, मैंने सम 28,000 में खरीदे थे 40 शेयर, अब उसका वैल्यू हो गया 44,000, तो मेरा तो वेल्थ इंक्रीज हो गया ना। राइट। कोई भी शेयर होल्डर क्या सोचेगा कि यार लेट मी गो एंड, अगर कंपनी कन्वर्टेबल लोन का ऑप्शन दे रहा है, कंपनी इज गिविंग मी एन ऑप्शन टू कन्वर्ट माई लोन इनटू इक्विटी शेयर, देन डोंट यू थिंक इट वर्क्स इन माई फेवर, यस। right? It works in my favor. It gives me more wealth in the future. So shareholders are also more than happy to go with convertible loans. So convertible loans में क्या हो रहा है, आज लोन है लेकिन कल उसका बनने वाला है एक, कल क्या बनेगा उसका, इक्विटी शेयर बन सकता है। नाउ यू टेल मी मंशा, आज बॉन्ड है कल इक्विटी शेयर बनेगा, तो कल जब वो इक्विटी शेयर बनेगा तो मेरा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टोटल इंक्रीज नहीं हो जाएगा? यस। In the future when I convert these convertible loans into shares, समझो आज मेरे पास 10 लाख शेयर्स थे, ठीक है। Me as in company had 10 lakh shares in issue. Tomorrow when the company converts the bonds into equity shares, don't you think ये 10 लाख का बढ़ के 11 लाख 12 लाख कुछ भी हो सकता है? हो सकता है। Now it can be any number but it will be a number more than 10 lakh. राइट। ठीक है। आपका प्रॉफिट था 40 लाख, ठीक है। 40 लाख अपॉन 10 लाख, अर्निंग्स पर शेयर वॉज 4। अब जैसे जैसे सी ईयर इज, आपके ईयर्स आगे बढ़ रहे हैं, या इन द करंट ईयर ऑल्सो यू नो कि यार मेरे पास एक बॉन्ड है, मतलब कंपनी हैज इशूड बॉन्ड्स एंड दीज बॉन्ड्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। मेरा बेसिक ईपीएस आता है 40 लाख अपॉन 10 लाख विच इज 4 रुपीज पर शेयर, ठीक है। राइट। 40 लाख अपॉन 10 लाख विच इज 4 रुपीज पर शेयर। बट आई नो कि यार मेरे पास बॉन्ड्स है और कल जाके ना ये बॉन्ड्स इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो कल चल के मेरा डिनोमिनेटर 10 लाख नहीं होगा, 12 लाख होगा, राइट। राइट। मुझे आज के तारीख में ही पता है कि यार ये जो डिनोमिनेटर है ना ये बदलने वाला है। एंड मुझे शेयर होल्डर्स को बताना है कि देखो ज्यादा खुशी मत मनाओ, 4 लाख अपॉन 10, 4 रुपीज अर्निंग्स पर शेयर लेके आप नाच रहे हो ना। इन द फ्यूचर देर इज अ पॉसिबिलिटी कि दीज बॉन्ड्स विल गेट कन्वर्टेड टू इक्विटी शेयर्स, तो यार अर्निंग्स तो चेंज नहीं होगा बट डिनोमिनेटर इंक्रीज हो सकता है, राइट। राइट। तो डिनोमिनेटर
10 के बदले 12 हो जाएगा, है ना? तो 40/12 कितना आएगा बताइए? 3.33। 3.33। जैसे शरबत में आपने और पानी डाला तो डाइल्यूट हो गया, वैसे ये कन्वर्टेबल लोन के वजह से, हम्म। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के वजह से, डू यू अग्री कि आपका अर्निंग्स पर शेयर कम होने का पॉसिबिलिटी हो रहा है? यस। Which is why if you have something like a convertible loan in your financials, these have the ability to reduce the earnings per share in the future when they get converted into equity shares. And so हमको शेयर होल्डर्स को बताना है कि आज 4 लाख, आज 4 पर शेयर है ईपीएस, कल चल के 3.3 या जो भी नंबर आपने बोला वो हो सकता है। सो यू आर गिविंग देम फुल डिस्क्लोजर कि यार देखो, यू हैव एन अर्निंग्स ऑफ 4 पर शेयर राइट नाउ, बट हमारे पास कुछ ऐसे बॉन्ड्स है विच हैव द पोटेंशियल टू गेट कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, और जब ये इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होगा तो क्या इम्पैक्ट आएगा? when this gets converted into equity shares, the denominator will increase, so earnings per share will fall down. Do you agree? यस। ये एक पार्ट हो गया। ठीक है, दूसरा पार्ट एक आप और समझिए। जब कंपनी के पास बॉन्ड्स थे या डिबेंचर्स थे, तो कंपनी को उस पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता था। हम्म। सपोज मेरे पास 10 लाख के बॉन्ड्स हैं, ठीक है, कंपनी हैज 10 लाख रुपीज ऑफ बॉन्ड्स इन इशू, उस पे इंटरेस्ट हम्म। रेट है 10%, तो कंपनी कितना इंटरेस्ट पे कर रहा होगा एवरी ईयर? 1 लाख। 1 लाख। अब बॉन्ड्स जब इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे तो क्या ये इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? नो। नो। एक और बात समझिए, यहां तक यू आर विथ मी? यस यस कंप्लीटली। ओके। अब लेट्स से ये जो बॉन्ड्स है ये आपने इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दिए। थिंक अबाउट बिफोर कन्वर्जन, 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट गेट्स डेबिटेड टू P&L, डू यू अग्री? यस। तो इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस फॉर द कंपनी, राइट? राइट। जब भी कोई एक्सपेंस होता है तो उससे मेरा प्रॉफिट कम होता है ना? राइट। हाँ जी। और प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स भी कम होगा। हाँ जी। ये तो भाई अपना कॉमन सेंस है, प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स कम होगा। मेरा टैक्स रेट समझो 30% है, ठीक है? हम्म। अब मैंने 1 लाख से मेरा एक्सपेंस बढ़ाया तो मेरा प्रॉफिट 1 लाख से कम हो गया, राइट? राइट। तो मेरा कितना टैक्स बचेगा? 1 लाख इंटू 30%, 30,000 का टैक्स बचेगा, राइट? राइट। सो 1 लाख का एक्सपेंस होगा और 30,000 का टैक्स बचेगा, तो नेट नेट कितना होगा? 70,000। हाँ जी। 1 लाख का आउटफ्लो, इंटरेस्ट एक्सपेंस, और टैक्स बच गया ना, 30,000 का टैक्स बच गया मेरा। हाँ हाँ। सो नेट कितना हो जाएगा एक्सपेंस मेरा, इफ नेट ऑफ टैक्स, टैक्स को एडजस्ट करके एक्सपेंस कितना हो जाएगा? 70,000 हो जाएगा, राइट। राइट? सो ये बात को एक बार जस्ट कीप दैट इन माइंड। ओके। अब डू यू अग्री कि जब ये बॉन्ड्स इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो गए तो P&L में ये एक्सपेंस भी डेबिट नहीं होगा? राइट। तो 1 लाख का एक्सपेंस नहीं है तो प्रॉफिट कम नहीं हो रहा है, हम्म। तो एक्सपेंस इज नॉट हैपनिंग, पॉइंट 1। बट बिकॉज एक्सपेंस इज नॉट हैपनिंग तो अभी टैक्स सेविंग भी नहीं हो रहा है, राइट? ओके। यस। है ना? तो ड्यूअल इफेक्ट हो रहा है हर चीज का, एक्सपेंस हाँ नहीं हो जी। रहा है तो फिर टैक्स सेविंग भी नहीं हो रहा है। एक्सपेंस था तो टैक्स सेविंग था, एक्सपेंस नहीं तो हम्म। टैक्स सेविंग भी नहीं। फेयर हम्म। इनफ? हाँ जी। ओके। अब लेट्स अंडरस्टैंड दिस विथ एन एग्जाम्पल हियर। ABC Limited had profit from operations of 20. It had a loan outstanding of 40 lakh bearing 10% interest. Rate of tax is 30. Company has 5 lakh shares in issue. 5 lakh shares in issue मतलब आज के तारीख में कितना शेयर्स है? 5 लाख शेयर्स है। हम्म। This loan can be converted into 4 lakh shares at the option of the lender. अब पहले अपने को ईपीएस कैलकुलेट करना है। 20 लाख इज प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, दैट इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। 40 लाख का लोन है, 10% का इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन लोन इज -4 लाख, है ना? राइट। हाँ जी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 16 लाख, 30% का टैक्स हटा हो जाएगा 4,80,000। हम्म। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना होगा? 16 लाख -4,80,000, 11,20,000। राइट। प्रेफरेंस डिविडेंड सब्ट्रैक्ट दिया है कुछ नहीं, तो नो। प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स इज 11,20,000, नंबर ऑफ शेयर्स इज 5 लाख, ईपीएस इज 2.24। मेक सेंस? ओके। हाँ जी। Now,
व्हाट इफ द लोन ऑफ 40 lakhs गेट्स कन्वर्टेड इनटू 4 lakh इक्विटी शेयर्स, है ना? Mm-hmm. Yes. If that gets converted, will the company have to pay the will the company have to pay interest? No. नो. सो 20 lakhs प्रॉफिट तो सेम रहेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना? 0. Zero. प्रॉफिट बिफोर टैक्स 20. टैक्स कितना? 6 लाख. 6. Mm-hmm. अब जस्ट एक छोटा सा चीज आप ऑब्जर्व करो. यहाँ पे टैक्स था 480, यहाँ Mm-hmm. पे टैक्स है 6. देखो टैक्स बढ़ गया आपका, है ना? Right. हाँ जी. आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस 14 lakhs. प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है. Mm-hmm. 14 lakhs इज प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स. नंबर ऑफ शेयर्स कितना? ये 5 लाख प्लस ये 4 लाख, दैट इज 9 लाख. Right. व्हाट इज द ईपीएस नाउ? 1.56. 14 lakh upon 9 lakh, 1.56. See, if the loan gets converted into equity shares, EPS drops to 1.56, है ना? Hence, Right. this is called diluted EPS. Okay. ठीक है. Mm-hmm. अब एक्सपेंस सेव्ड कितना? 4 लाख का एक्सपेंस बचाया. हाँ जी. और एडिशनल कितना टैक्स पे किया? यहाँ पे 480 था, यहाँ पे 6 लाख हो गया. तो एडिशनल कितना पे किया? 120. 120. तो नेट सेविंग कितना हुआ? 280 का हुआ ना नेट सेविंग. हाँ जी. Right. नाउ दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूटेड ईपीएस. अब हाउ टू कैलकुलेट डाइल्यूटेड ईपीएस मैंने आपको स्टेप्स बना के दिए हैं. Mm-hmm. आई वॉन्ट यू टू जस्ट रीड द स्टेप्स. ये लिखो मत बिकॉज यू विल गेट द शीट, बट एक बार Okay. स्टेप्स देख लो आप. चेंज इन एक्सपेंस ऑन अकाउंट ऑफ कन्वर्जन. ठीक है. इंटरेस्ट कॉस्ट और इंटरेस्ट एक्सपेंस व्हेन लोन वाज आउटस्टैंडिंग will not be incurred when loan is converted to equity shares. ठीक है. अब देखिए यहाँ पे क्या था? टू 4 लाख का इंटरेस्ट था, राइट? यहाँ पे वो इंटरेस्ट आप पे Zero. नहीं कर रहे हो. सो दैट इज Right. चेंज इन एक्सपेंस ऑन अकाउंट ऑफ कन्वर्जन. Okay. Done, sir. ठीक है. अब लेट्स रीड द क्वेश्चन. A company had 8.28 million shares in issue at the start of the year and made no new issue of shares during the year ended 31 December. But on that date, it had in issue 23 lakh convertible loan stock 2006 to 2009. The loan stock carries an effective rate of 10%. Assume an income tax rate of 30%. The earnings for the year were 22 lakh 8,000. ठीक है. दिस लोन स्टॉक विल बी कन्वर्टेबल इनटू ऑर्डिनरी $1 शेयर्स एज फॉलोज. 2006 90, अगर 2006 में कन्वर्ट किया तो 90 शेयर्स मिलेंगे फॉर $100 का लोन. अगर Okay. 2007 में कन्वर्ट किया तो 85 शेयर्स मिलेंगे फॉर $100 ऑफ लोन. अगर 2008 में कन्वर्ट किया तो 80 शेयर्स मिलेंगे फॉर $100 का लोन. 2009 में कन्वर्ट किया तो 75 शेयर्स मिलेंगे फॉर $100 ऑफ लोन. Mm-hmm. ठीक है. सो सबसे पहले ना आप ये पढ़ो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज लाइंस. ये मैंने यहाँ पे लिख के दिया है. Okay. एक बार पढ़िए उसको. Yes, got it. ठीक है. अब वेनेवर सी, अभी आपको ये लग सकता है कि यार हमें कैसे पता कितना कन्वर्ट होगा? Mm-hmm. वी डोंट नो ना.
We यस। don't know when will the loan holders convert the loan into equity shares, अपने को वो नहीं पता है at this point in time. Correct? तो यस। what we should assume in such situation is कि जो highest possible level of conversion है ना, वो that will happen in the sense यहाँ पे 75 80 85 90 चार ऑप्शंस पॉसिबल है ना? राइट। So what we have to assume is कि highest possible conversion will happen, which means कि bondholders will opt to convert in the year 2006 when they will get 90 shares for $100 of loan. ओके। See, again, we go back to prudence principle. Prudence principle में we are basically being extra careful, extra cautious. हम शेयर होल्डर्स को वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो बताना चाहते हैं। तो शेयर होल्डर्स के लिए वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो क्या होगा कि यार loan got converted into 90 shares instead of loan getting converted to 75 shares. Correct? राइट। हाँ जी। So, uh, then you will say that देखो मेरा लोन आउटस्टैंडिंग था 23 लाख का। ठीक है, $100 ऑफ लोन को मिल रहा है 90 शेयर्स। तो 23 लाख, जो नॉमिनल वैल्यू 100 है लोन का, उसके बदले में आपको मिल रहा है 90 शेयर। तो अगर 23 लाख का लोन है तो उसके बदले में आपको कितना मिलेगा? 23 लाख इंटू 90/100, 20,70,000। करेक्ट? राइट। हाँ। अब वी हैव टू कैलकुलेट, इफ वी हैव टू कैलकुलेट डाइल्यूटेड ईपीएस। सबसे पहले रेगुलर प्रॉफिट निकालो। रेगुलर प्रॉफिट कितना था? 22,08,000। नाउ टेल मी, इफ द लोन नोट गेट्स कन्वर्टेड इनटू इक्विटी, तो ये इंटरेस्ट ऑफ 10% आपको पे करना नहीं पड़ेगा, राइट? राइट। हाँ सो जी। 23 लाख इंटू 10% हो जाएगा 2,30,000, राइट? राइट। इतना आपका इंटरेस्ट कॉस्ट सेव होगा, है ना? है ना? हाँ जी। हाँ जी। हाँ। अब 2,30,000 का इंटरेस्ट कॉस्ट सेव होगा। थर्ड स्टेप हमने क्या लिखा था? कैलकुलेट टैक्स सेव्ड और एडिशनल टैक्स। टैक्स पेड जो भी होगा। इफ एक्सपेंस रिड्यूसेस देयर विल बी एडिशनल टैक्स। एक्सपेंस 230 से कम हुआ तो एडिशनल टैक्स होगा 2,30,000 इंटू 30%, बिकॉज 30% इज द टैक्स रेट, राइट? राइट। सो 69,000 का एडिशनल टैक्स होगा। आपका अपडेटेड अर्निंग्स कितना होगा? देखिए, 22,08,000 ओरिजिनल अर्निंग्स, 230 का इंटरेस्ट कॉस्ट बचेगा, सो सेविंग विल बी एडेड। यू विल एड प्लस 2,30,000, करेक्ट? यस। एंड 69,000 का एडिशनल टैक्स पे होगा। यस। सो आपका नेट इम्पैक्ट ऑफ स्टेप 2 एंड स्टेप 3 शुड बी एडेड टू स्टेप 1। यू विल गेट 23,69,000, राइट? ओके। What is the number of equity shares? Assuming that it happened at the highest possible level, 20,70,000। राइट। अब डाइल्यूटेड ईपीएस कैसे निकलेगा? स्टेप 4 अपॉन, आई शुडंट से स्टेप 4 अपॉन स्टेप 5, स्टेप 4 अपॉन ओरिजिनल शेयर्स प्लस स्टेप 5, ओके। है ना? बिकॉज 82.8 million इज द ओरिजिनल शेयर्स, 2.07 million इज द नंबर ऑफ शेयर्स ऑन कन्वर्जन। कितना हो जाएगा? 0.2289 हो जाएगा, राइट? गॉट। हाँ जी। So this is how you would calculate diluted EPS. ओके। मेक सेंस? हाँ अब जी। मैं आज हमने काफी सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स देखे हैं, है ना? अब एक आखिरी कॉन्सेप्ट देखना है अपने को, विच इज कॉल्ड शेयर वारंट। ओके। अब शेयर वारंट क्या होता है? शेयर वारंट इज बेसिकली अ पीस ऑफ पेपर विच इज अटैच्ड टू any other instrument. It gives you the option to buy shares at a predetermined price. ठीक है? Okay. So, let's get this one small question that can be asked on share warrants. तो let's discuss that concept कि उसमें exactly करना क्या है अपने को। ठीक है?
थिंक ऑफ शेयर वारंट लाइक अ स्क्रैच कार्ड या डिस्काउंट कूपन नहीं होता है आपके पास। जब आप कोई जोमेटो पे या कहीं पे कोई हम्म। यू परचेज समथिंग एंड यू गेट अ स्क्रैच कार्ड। वो स्क्रैच कार्ड से क्या होता है, यू कैन यूज दैट एट एनी पॉइंट, एंड व्हेन यू अप्लाई दैट कोड, किसी चीज का द प्राइस दैट यू हैव टू पे लेटर गोज डाउन। करेक्ट। राइट। So this is also something on similar lines. An option or a warrant gives the holder the right to buy shares at some time in the future at a predetermined price. Cash is received by the entity at the time the option is exercised, and the diluted EPS calculation must allow for this. The total number of shares issued on the exercise of the option or warrant is split into two. The number of shares that would have been issued if the cash received had been used to buy shares at a fair value, the remainder which are treated like a bonus. Basically, a formula for diluted EPS with an option can be used to work out the number of free shares. Number of options into fair value minus exercise price upon fair value. इसको अप्लाई कैसे करना है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। Say there is a person who holds a share warrant which enables him to buy equity shares for $10 each. When he exercises the warrant, the market price is 20. Utsav has $100 in his pocket. If he did not have the warrant in his hand, $100 से वो खरीद पाता 5 शेयर। करेक्ट। हम्म। But राइट। because he is holding a warrant enabling him to buy shares at 10, he is in a position to buy 100 upon 10, that is 10 shares. Because of the warrant, he can buy 5 additional shares. So again, we'll treat this like a bonus. But ओके। instead of getting confused or carried away with this, let's understand in a simple manner कि इसका calculation कैसे होता है। A company had 8.28 million shares in issue at the start of the year and made no issue of shares during the year ended 31 December 2004. But on that date, there were outstanding options to purchase 9,20,000 ordinary $1 shares at 1.7 per share. The average fair value of ordinary shares was 1.8. Earnings for the year ended 31 December were 22 lakh 8,000. Calculate diluted EPS for the year ended 31 December 2004. अब बोनस एलिमेंट इन शेयर वारंट्स अपने को कैसे निकालना है, दे हैड गिवन अस अ फॉर्मूला हियर। नंबर ऑफ ऑप्शंस इनटू फेयर वैल्यू। नंबर ऑफ ऑप्शंस कितना है, 9,20,000 है ना। राइट। ऑप्शंस टू हाँ जी। परचेज 9,20,000 इनटू फेयर वैल्यू कितना है, 1.8। एक्सरसाइज प्राइस मतलब द प्राइस दैट यू विल पे इन ऑर्डर टू परचेज 1 शेयर, वो कितना है, 1.7 है। ठीक है। हम्म। सो 9,20,000 इंटू 1.8 माइनस 1.7 अपॉन 1.8 विच गिव्स मी 51,111। दिस इज माई बोनस एलिमेंट। डाइल्यूटेड ईपीएस कैसे निकालेंगे, 8280 प्लस 51,111 which gives me diluted EPS of 0.265। तो बस इतना ही कैलकुलेशन आ सकता है। सी अगेन, ईपीएस एज एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर आप सीए के करिकुलम में देखेंगे या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बाय इटसेल्फ देखेंगे, तो इट्स क्वाइट एन एक्सटेंसिव स्टैंडर्ड। ठीक है। उसमें बहुत ओके। सारी और भी चीजें इन्वॉल्व है। बट ये पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगेन एफआर लेवल में सिर्फ दीज कैलकुलेशंस, एंड एक डाइल्यूटेड ईपीएस वाला कैलकुलेशन और दूसरा राइट्स इशू वाला कैलकुलेशन, दीज आर द टू थिंग्स दैट कैन बी अ लिटिल ट्रिकी इन द पेपर ओके। इफ यू हैव नॉट लर्न द फॉर्मूला। अगर आप फॉर्मूला याद करके जाओ या स्टेप्स, बेसिकली आई वुडंट इवन से फॉर्मूला, अगर आप स्टेप्स याद करके जाओगे तो दैट कैलकुलेशन विल बिकम एक्सट्रीमली स्ट्रेट फॉरवर्ड। हम्म। ठीक है। सो लेट्स नॉट ओवर कॉम्प्लिकेट मैटर्स ऑन दिस फ्रंट। ईपीएस, I mean, we started at what, 8:15, and it's almost more than 1.5 hour, लेकिन हमारा पूरा स्टैंडर्ड कवर हो गया है। द आइडिया इज कि एग्जाम में आपको स्टेप्स याद रखना है। एक तो राइट्स इशू के केस में क्या करना है वो, और डाइल्यूटेड ईपीएस के केस में क्या करना है वो। आप स्टेप्स को वैसा का वैसा याद रखो, यू विल बी एबल टू टैकल ऑल द पॉसिबल सर्कमस्टांसेस इन द पेपर। स्टेप्स को ओके। इग्नोर नहीं करना। ठीक है। सो जस्ट मेक श्योर दैट यू हैव गॉन थ्रू दीज क्वेश्चंस। इस शीट में 8 क्वेश्चंस है। आई एम हम्म। अपलोडिंग द रिकॉर्डिंग राइट अवे। Make sure that you have gone through the recording in detail and you have gone through the calculations also in the sheet. ठीक है।